नमस्कार। आज हम लोग योगा की जनरल सीरीज देखेंगे जिसको आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रोजाना, जो आपको डायबिटीज, अस्थमा, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस इन सारी बीमारियों से दूर रखता है। साथ ही साथ हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से और फिर धीरे धीरे हम आगे की योगिक अभ्यास इसको कैसे किया जाता है ये देखेंगे। थैंक यू। चलिए सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट। ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणाः सरसजा सरसन्न संगवेष्टः केयूर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्यमया वपुर्धृतशङ्खचक्रः मित्राय नमः। Arch back, hinge forward, Ashvasanchalana, Kumbhak Asana. Kumbhak Asana is a plank pose. Ashtangasana, first your knees, then your chest and your chin on the floor, please. Urdhva Mukha Swan, upward facing dog. Adho Mukha Swan, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एड़ियां जमीन पर, सर को अंदर की ओर प्रेस करें। अश्व संचालना विद अदर लेग। Look up towards the sky. Padhastasana, both of your legs together, knees straight. Uttan Hastasana, Namaskar Mudra. Now let's do it with breathing. Ravaye Namaha. Arch back, breathe in. Hinge forward, breathe out. Ashvasanchalana, breath in. Kumbhak Asana, breath out. Ashtangasana, hold your breath outside. Urdhva Mukha Swan, breath in. Adho Mukha Swan, breath out. Ashvasanchalana, breath in. With a smile on your face, please. Padhastasana, breath out. Uttan Hastasana, breath in. Namaskar Mudra, breath out. Suryaya Namaha. 2, breathe in. 3, breathe out. 4, breath in. 5, breath out. 6, breath in, hold your breath outside. 7, breath in. 8, breath out. 9, breath in. 10, breath out. 11,
breath in. Namaskar Mudra 12, breath out. Om Bhanave Namaha. Arch back, hinge forward. Ashvasanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana, your knees, your chest, your chin. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashvasanchalana with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar. Om Khagaya Namaha. Arch back, hinge forward. Ashvasanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana, your knees, your chest, your chin. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashvasanchalana with other leg. Knee on the floor, look up towards the sky. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar. Om Pushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, your knees, your chest, your chin. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Arch back, hinge forward. Ashvasanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashvasanchalana with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar Mudra. Om Marichaye Namaha. Arch back, hinge forward. Ashvasanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Anga Asana, your knees, your chest, your chin. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan.
Ashwa Sanchalan with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar mudra. Om Savitre Namaha. Arch back. Hinge forward. Ashva Sanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana, knees, your chest, your chin. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashva Sanchalana with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar mudra. Om Adityaya Namaha. Arch back. Hinge forward. Ashva Sanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana, your knees, your chest, your chin. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashva Sanchalan with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar mudra. Om Arkaya Namaha. Arch back. Hinge forward. Ashva Sanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Anga Asana. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashva Sanchalana with other leg. Look up towards the sky. Padhast Asana. Uttan Hast Asana. Namaskar mudra. Om Bhaskaraya Namaha. Arch back. Hinge forward. Ashva Sanchalana. Kumbhak Asana. Ashtha Angasana. Urdh Mukh Shwan. Adho Mukh Shwan. Ashva Sanchalana with other leg. Padhastasana, both of legs together, knee straight. Uttan Hastasana. Namaskar mudra. Release and relax. चलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे बड़े आराम से बिना किसी जोखिम मूवमेंट के और हम लोग तैयारी करेंगे अगले योग अभ्यास के लिए। सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए, पीठ को सीधा रखिए, आपका सर, आपकी गर्दन, आपकी पीठ एक लाइन में। क्लोज योर आइज, हैंड्स ऑन योर नीज इन ज्ञान मुद्रा। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें अपने घुटनों के ऊपर, आंखें बंद रखें, पीठ को सीधा रखें, चेहरे पर तनाव नहीं, प्रसन्नता का भाव। Before we start with the yogic asanas, we'll start the session with a small prayer. Let's
join our hands in Namaskar Mudra. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येयमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूर्भिः वशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Release your hands and slowly and gently let's get into Shavasana. पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें. Loosen up yourself completely before we start with yogic asanas. सबसे पहले आसन के लिए तैयार होंगे. We'll get ready for the very first practice of the day. सुप्त ताड़ आसना. दोनों पैर एक साथ लाइएगा, हाथों का फिंगर लॉक बनाइए. Stretch your arms and your legs as much as you can opposite direction. हाथ और पैर दोनों विपरीत दिशा में खींचेंगे आप. जितना ज़्यादा खिंचाव होगा उतना बढ़िया है. सांसें सामान्य गति से चलने दें. सांसों में जरा सा भी बदलाव नहीं. कीप ब्रीदिंग. खिंचाव बनाए रखेंगे आप और अपने शरीर के साथ हम सभी लोग दाहिनी ओर करवट लेंगे. लेट्स जस्ट टर्न ourselves towards the right side everyone. Maintain the stretch. Keep both of your legs in one line. हाथ और पैर एक सीध में रखें. शरीर का चंद्रमा ना बनाएं. जितना आप खींचेंगे उतना अच्छा है. वेरिको वेन्स के लिए बढ़िया है. स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा है. आलस्य को भगाने में बहुत हेल्पफुल है ये आसन. स्लोली ग्रेजुअली कम बैक. धीरे से बड़े आराम से अपने शरीर के साथ बाईं ओर करवट लीजिए. खिंचाव बनाए रखें. पूरा शरीर एक सीध में रखें. Slowly, gradually come back. Release your hands, release your legs, relax for a while. Next is अगला अभ्यास आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए है, पीठ के लिए है, स्पाइन के लिए है. वेरिएशंस कहते हैं इनको, क्रोकोडाइल वेरिएशंस, जो कि आपको पीठ दर्द से काफ़ी राहत दिलाता है. क्रोकोडाइल वेरिएशंस करने के लिए आप दोनों हाथों को सर के नीचे ले आएं फिंगर लॉक बना करके. दोनों पैरों को बेंड करें. पैरों में हल्का सा अंतर रखें. दोनों घुटने दाहिनी ओर ले जाइए. अपने सर को बाईं ओर ले जाइए. सांसें सामान्य गति से चलने दें. दोनों घुटने ज़मीन की ओर दबाएं. कीप ब्रीदिंग. एल्बोज एंड शोल्डर्स ऑन द फ्लोर.
स्लोली कम बैक। बड़े आराम से दोनों घुटने बाईं ओर ले जाइएगा, अपने सर को दाहिनी ओर। यह अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, डायबिटीज है उनके लिए अच्छा है, नी आर्थराइटिस के लिए भी बढ़िया है। अगर आपके पैरों में अंतर है, दोनों घुटनों में अंतर है, दोनों घुटने जमीन की ओर दबा रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं काफी स्ट्रेन है आपके घुटने पर, थाइस पर। There is a lot of stretch in your lungs since your elbows and shoulders are on the floor. This stretch in your lungs will can help you to improve your lung capacity, will help you to improve your breathing capacity. अस्थमा है, दमे की बीमारी है, सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी के आसपास जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने में बहुत ही सहायक है। स्लोली कम बैक। दोनों पैर सीधे कर लेंगे, हाथ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रखिएगा। वेरिएशन 2 के लिए तैयार होंगे। दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के ऊपर, बाईं तरफ सर, दाहिनी तरफ। जो पैर जमीन पर है उसकी उंगलियां आसमान की ओर। सांसें सामान्य गति से चलने दें। स्टे देयर इन द फाइनल पोजीशन फॉर एटलीस्ट 30 seconds. Slowly come back. बड़े आराम से दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के घुटने को, दाहिनी तरफ ले जाइए बाएं पैर के घुटने को, सर को बाईं तरफ, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर का पंजा जो पैर जमीन पर है उसकी उंगलियां आसमान की ओर रखिए। काइंडली कीप द फुट ऑफ द अदर लेग इन 90 डिग्री एंड देन ट्राई टू ट्विस्ट। ये बहुत बढ़िया है लोअर बैक के लिए, जिनको लंबर रीजन में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास है। इसको अगर आपको पीठ में दर्द रहता है, आप इसको दिन में 2 या 3 बार करेंगे, काफ़ी राहत मिल जाएगी आपको पीठ में, लोअर बैक में स्पेशली। दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट विमेन, फॉर विमेन दोज हु आर suffering from back pain due to pregnancy or maybe after pregnancy. This practice can help them a lot. Slowly come back. दोनों पैर सीधे कीजिएगा, हाथों को रिलीज कीजिएगा, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल इन शवासन। पैरों में अंतर रहेंगे, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। ध्यान देना है कि अभी जो हमने 2-3 आसन किए हैं, इन तीनों आसनों से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आए हैं। आंखें बंद ही रहेंगी, तनाव नहीं रहेगा, परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज सुप्त बद्ध कोण आसना। सुप्त बद्ध कोण आसन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, पैरों को बेंड कीजिए, दोनों पैरों के पंजे आपस में जोड़ते हुए घुटनों को अलग अलग करके ज़मीन की ओर लाएंगे और हाथों का फिंगर लॉक बना करके यू विल स्ट्रेच देम बाय द साइड ऑफ योर ईयर्स एंड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। दिस इज वन ऑफ द रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस। इसको हम रिस्टोरेटिव आसन भी कहते हैं। इन योगा पोजेस में से ये एक पोज है। दिस इज वेरी मच हेल्पफुल टू रिस्टोर योर माइंड एंड बॉडी बोथ। आपके मन को, शरीर को शांत रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये अभ्यास। कुछ देर आप आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें प्लीज। कीप ब्रीदिंग। Come back.
रिलीज एंड रिलैक्स इन शवासना। पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान। पवन मुक्तासना, दोनों पैर एक साथ ले आएंगे। बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स, ब्रिंग योर नीज ऑन योर चेस्ट एंड होल्ड योर नीज विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर लॉक। Raise your head and place your chin in between your knees and stay there for a while. We'll say for 30 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, halfway done, stay there for some more time. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Come back. पहले सर, फिर हाथ, फिर पैर. Release and relax. Relax in Shavasana. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान। अभी जो हमने आसन किया पवन मुक्तासन, ये आपके पेट के लिए बहुत हेल्पफुल है, वेरी मच हेल्पफुल फॉर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपो एसिडिटी है। इनफैक्ट ये आपके पेट को कम करने में भी हेल्पफुल है। बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करें तो। अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है तो आप एक पैर से कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे नौकासना, बोट पोज। जिनकी पीठ में बैक पेन है, जिनको लोअर बैक पेन है, गर्दन में पेन है, वो लोग इसको नहीं करेंगे। बाकी हम सभी लोग करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, हैंड्स ऑन योर थाइज, रेज योर लेग्स 45 डिग्री, point your fingers towards your toes and then raise the upper part of your body. Look up towards the sky. Stay there. Breathe. Keep breathing, do not hold your breath. This will help you to get rid of the excessive belly fat. Very much helpful to gain the control over your abdominal muscles. Slowly come back. First your legs, then your hands and then your head. Release and relax. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर, आंखें बंद. Relax in Shavasana for a while. Just relax yourself before we start with the next practice. Next practice again will help you to develop your abdominal muscles. This is also known as Uttan Padasana. We'll start from 30 degree. Bring both of your legs together. दोनों पैरों को एक साथ ले आइए. हाथ बट के नीचे रखिए अपने. दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री में. Raise both of your legs only at 30 degree and we'll hold it for say 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1060 up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 up. Knee straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come back to 60 in the reverse order. Knee straight please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on the floor. Release and relax. पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें. अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं ये आपकी पीठ के लिए है. सेतु बंध आसना, ब्रिज पोज भी कहते हैं इसको हम लोग. दोनों पैरों को एक साथ ले आइए. ब्रिंग बोथ ऑफ योर लेग्स टुगेदर. बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली होल्ड योर एंकल जॉइंट्स और धीरे से बड़े आराम से अपनी कमर को आसमान की ओर उठाएं. एंड लेट्स जस्ट स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. और ऊपर ले जाइए कमर को, पीठ को और ऊपर ले जाइए और आसन के अंतिम स्थिति में बने रहेंगे. You can try to lift up more up. Slowly come back. धीरे से बड़े आराम से वापस. Release your hands and release your legs. Relax करो. हाथों को रिलीज करें, पैरों को रिलीज करें. शवासन में पैरों में अंतर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के पंजे आसमान की ओर, आंखें बंद. हम सभी लोग दाहिनी तरफ करवट लेकर के पेट के बल लेट जाएंगे. Let's take a prone position everyone. मकर आसन की स्थिति में चले जाएंगे. पैरों में अंतर रहेगा, पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे, हाथों के पंजों पर आपका माथा रिलैक्स कर रहा होगा. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें. इसको हम मकर आसन भी कहते हैं. ये आपकी पीठ के लिए बहुत ही लाभदायक है. Let's get ready for the very first practice in prone position. इसको हम लोग निरालंब आसन कहते हैं. दोनों पैरों को एक साथ लाइए, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, टोज पॉइंटेड बैक. हाथों को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ जितना कर सकते हैं. एंड देन यू विल बेंड योर एल्बोज, प्लेस योर चिन इन बिटवीन योर पाम्स एंड बेंड योर लेग्स. ब्रिंग योर एल्बोज टुगेदर. हाथों की कोनियों को साथ में ले आइए. वेरी नाइस. नाउ बेंड योर लेग्स एज वेल एवरीवन. And let's just stay there for a while. This is very good for those who are suffering from thyroid, parathyroid related problems. Very good for those who are suffering from double chin. Stay there for a while. Breathe. Slowly come back. पहले पैर, फिर हाथ, फिर सर. मकर आसन में रिलैक्स करना है. पैरों में अंतर, रिलैक्स. Next is one of the traditional asana which can help you to improve the flexibility of your spine.
is also known as Ushtrasana in prone position. इसको करने के लिए दोनों पैरों को बेंड करेंगे. Bend both of your legs. Cross your legs. Hold your toes. पैरों के अंगूठे पकड़ें एक एक करके. दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ करके पैरों के पंजों को बट के ऊपर दबाना है. And you will raise the upper part of your body resembling a shape of a camel. Your elbows will be pointing towards the sky. आपके हाथों की कोहनियाँ आसमान की ओर हो जाएंगी ताकि आपको और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो सके आपके स्पाइन में. Stay there for a while. Look up. You can also perform a kaki mudra of your mouth. Stay there and breathe. पैरों को और दबा सकते हैं आप. वापस आते समय सबसे पहले काकी मुद्रा रिलीज करेंगे. फिर आपका सर नीचे लाएंगे आप. फिर अपने दोनों हाथों को रिलीज करेंगे. एंड स्लोली एंड जेंटली यू विल रिलीज योर लेग्स एंड रिलैक्स अगेन इन मकरासना. नेक्स्ट इज अपवर्ड फेसिंग डॉग. पैरों की उंगलियां पीछे की ओर ले लीजिए. दोनों हाथों को नाभि के बगल में ले आइए. शरीर का ऊपरी भाग उठाएंगे कुछ इस तरह से कि आपके हाथ जो हैं वो लंबवत हो जाएं जमीन से. एंड यू आर लुकिंग अप टुवर्ड्स द स्काई. धीरे धीरे शरीर का ऊपरी भाग उठाइए. हाथों पर ताकत लगाइए. एंड ब्रिंग योर हैंड्स परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. Your knees are also above the floor from in the final posture. Stay there for at least 30 seconds. Your knees are above the floor. Slowly, gradually come back. धीरे से बड़े आराम से वापस आइएगा कंट्रोल के साथ. रिलैक्स इन मकर आसना. फिर से एक बार मकर आसन में रिलैक्स करें. पैरों में अंतर रहेगा. आज हम जो ये जो सीरीज कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है. ये इसका अभ्यास आप सभी लोग कर सकते हैं. बहुत सिंपल आसन है ये. हर एक एज ग्रुप का आदमी कर सकता है इसको. रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. ये काफ़ी हेल्पफुल है आपको फ्लेक्सिबल बनाए रखने में, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में. साथ ही साथ आपके शरीर में प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ता है आपके शरीर का. मसल्स टोन्ड अप होना शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो. अगले अभ्यास की ओर बढ़ना है. अधोमुख श्वान, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. पैरों को साथ में लाइए. नाउ धीरे से अपने हाथों की मदद से शरीर का ऊपरी भाग उठाएंगे कुछ इस तरह से कि आपके पैरों की एड़ियां जमीन पर, घुटने सीधे और सर जमीन की ओर जाएगा. ब्रिंग योर हिल्स ऑन द फ्लोर. सर को अंदर की ओर ले जाइए. स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. सर को अंदर की ओर प्रेस करें. जितना करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए. और अंदर और अंदर. कम बैक. दोनों पैर सीधे सामने करके बैठ जाइए दंडासन में, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन. रिलैक्स इन दंडासना. पैरों में अंतर रहेगा. पैरों में अंतर. हाथ पीछे ले जाइए एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. Next practice will be a twisting posture. It is also known as Vakra Asana. वक्र आसन करने के लिए आप दोनों पैरों को एक साथ ले आइए प्लीज. Bend your right leg. Keep your right foot in line with your left knee. दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के बगल में रखिए.
दाहिना हाथ पीछे, याद रखें जिस पैर को बेंड किया है वही हाथ पीछे, दूजा हाथ क्रॉस करेगा। आप दाहिनी तरफ से पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे एंड स्टे देयर इन द फाइनल पोस्चर। शरीर में जठर अग्नि प्रज्वलित होती है इस आसन में, जो कि खाना पचाने में बहुत सहायक है। ब्रीथ। सांसें सामान्य गति से चलने दें। अगर आपको तकलीफ हो रही है किसी भी पोस्चर को होल्ड करने में ज़्यादा देर, प्लीज़ कम बैक। लेट्स कम बैक। फर्स्ट योर हेड, देन योर हैंड्स एंड देन योर लेग्स। रिलीज एंड रिलैक्स। लेट्स ट्राई फ्रॉम अदर साइड। पैरों को साथ मिलाइए, बायां पैर बेंड कीजिए दाहिने पैर के घुटने के बगल में, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ क्रॉस करेगा बाएं पैर को और आप ट्विस्ट करेंगे बाईं तरफ। लेट्स होल्ड द पोस्चर फॉर अ व्हाइल। इस आसन का आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। This will help you to improve the gastric fire in your body, which is very much responsible for the digestion and to maintain the body temperature as well. Slowly, gradually come back. First your head, then your hands and then your legs. Release. रिलैक्स इन दंडासना। हाथ पीछे, सर पीछे की ओर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉरवर्ड बेंट, इज आल्सो नोन एज पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए आप दोनों पैरों को एक साथ ले आइए। स्ट्रेच योर आर्म्स and then hinge slowly and gradually, धीरे धीरे। Hold your toes, सामने देखिए, हाथों की कोनियाँ ज़मीन की ओर कीजिए and breathe. Let's stay there for say 20 breath. 20 बार आप सांस अंदर बाहर लेंगे और वहाँ पर रुके रहेंगे। Whenever you feel like you wanna come back, you can come back. Do not do it forcefully. आपका अपना शरीर है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर if you are suffering from स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आपको स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है तो प्लीज इस अभ्यास को ना करें। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बैक पेन, प्लीज अवॉइड डूइंग दिस प्रैक्टिस। स्लोली कम बैक इन द रिवर्स ऑर्डर। रिलीज योर हैंड्स and relax once again in Dandasana. वज्रासन में बैठेंगे हम लोग। दोनों पैरों को एक साथ लाइए। फोल्ड योर राइट लेग फर्स्ट, keep it below your thighs, below your butt, and then the left leg, keep it below your butt. Join your hands in Namaskar Mudra and stretch them up, Parvatasana. Stay in the final posture. पर्वतासन बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर को सही शेप में लाता है, आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये। Open up your chest while doing this. Keep your breathing natural and normal. This will help you to strengthen your shoulders, your arms, your arms, your back. Stay there for a while. Plus, in Vajrasana, जब आप वज्रासन में बैठते हैं, ये आपके थाइस को बड़ा मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ये आपके थाइस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है वज्रासना।
वज्र जैसा बना देता है, इसीलिए इसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में अगर आप खाना खाने के बाद बैठते हैं रोज 10 मिनट, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड प्रॉपरली। But then if you do it regularly, if you sit regularly in Vajrasana, you can keep your hands on your knees. Come back, धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को सीधे से दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे। Let's sit there for a while in Vajrasana for say a minute at least. आँखें बंद। अगला अभ्यास योग मुद्रा। इसको करने के लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है, दोनों हाथ सामने लेकर के मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर होगा, नाभि के नीचे रखेंगे आप, एंड देन यू विल हिंज फ्रॉम योर लोअर बैक, कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट एंड लुक स्ट्रेट, नॉट डाउन। देन पॉइंट योर एल्बोज टुवर्ड्स द फ्लोर, हाथों की कोनियां जमीन की ओर पॉइंट करें और धीरे से गर्दन को भी नीचे ले लें। And stay there for some time. आसन के अंतिम स्थिति में रुके रहें। Slowly come back. धीरे से पहले गर्दन, फिर शरीर का ऊपरी भाग, then your hands and then your, now stand on your knees, stand on your knees, apart your knees a bit, पैरों में हल्का सा अंतर रखें, दोनों हाथों को कमर पर रखें इस तरह से कि आपके अंगूठे दोनों रीढ़ की हड्डी को टच करें, and you will start pushing your back forward and you'll do the backward bend. उष्ट्र आसना, इसको अर्ध उष्ट्रासन भी कहते हैं, उष्ट्रासन भी कह सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ सकते हैं, that will be the final posture। अपने हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ लीजिए। Push your hip forward, कमर को आगे पुश करें, पुश करें, पुश करें। वापस आते समय पहले गर्दन, फिर हाथ, रिलीज एंड रिलैक्स। We'll get ready for standing postures। स्टैंडिंग आसनास के लिए तैयार होंगे, हम लोग बड़े आराम से धीरे से खड़े हो जाएंगे। तैयार होंगे ताड़ आसन के लिए, दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएं, हाथों को ऊपर ले जाते हुए पैरों की उंगलियों के ऊपर, एंड स्ट्रेच, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। Keep breathing, keep smiling, stay there. We'll come back slowly and gradually। पहले आपके हाथ आएंगे और फिर आपके पैर, रिलीज। साइड बेंडिंग के लिए तैयार होंगे, पैरों में अंतर ले लीजिए, दाहिना हाथ उठाइए कंधे तक, चेंज योर पाम, ब्रिंग इट बाय द साइड ऑफ योर लेफ्ट, बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, धीरे धीरे सामने देखिए, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, रुकिए आसन के अंदर स्थिति में, बिना हिले, बिना किसी मूवमेंट के, स्लोली कम बैक in the reverse order, release। Other side please,
बायां हाथ उठाइए कंधे तक, चेंज योर पाम, ब्रिंग इट बाय द साइड ऑफ योर हैंड एंड बेंड टुवर्ड्स योर दाईं तरफ, धीरे धीरे आराम से, एंड स्टे इन द फाइनल पोस्चर फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड्स. स्टे देयर, ब्रीथ. Come back. Release. Relax. वृक्ष आसना, ट्री पोज. दाहिना पैर बेंड करेंगे, बाएं पैर के थाइस के ऊपर, जस्ट बिलो योर groins. Join your hands in Namaskar Mudra in front of your chest and then slowly take them up. Let's stay here for a while. Breathe. हाथों को स्ट्रेच करें. हाथों को स्ट्रेच करें. हिलना नहीं है, मूवमेंट नहीं चाहिए. वापस आते समय पहले दोनों हाथ जिस तरह से गए थे, फिर पैर. अदर साइड. With easiness for 30 seconds. Stretch your arms. Breathe. Come back. पहले हाथ in the reverse order. Then your leg. Release. Relax. चलिए हम लोग तैयार होंगे पार्श्व त्रिकोणासन के लिए. पार्श्व त्रिकोणासन के लिए आप पैरों में अंतर ले लीजिए. फिर से दाहिना पैर बाएं पैर से लंबवत रखिए. बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के बगल में आएगा. दाहिना हाथ ऊपर जाएगा. ट्विस्ट करना है आप. दाहिना हाथ ऊपर जाएगा. बहुत अच्छे. ऊपर की ओर देखेंगे आप. सीधे. ब्रीथ. Slowly come back in the reverse order. Other side. दोनों हाथ एक सीन में. Come back. Release your hands. Release your legs. Let's get ready for Anjaneyasana. Let's get on our knees. Right foot should be ahead of your left knee. Press your pelvic towards the floor. Press your pelvic towards the floor first. जितना आप आसानी से ले जा सकते हैं. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ज्वाइन करें. धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं. And then backward bend and stay there for a while. Breathe. Come back.
रिपीट इट फ्रॉम अदर साइड। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे, या दाहिना पैर पीछे, बायां पैर आगे। जिस पैर से आप कर रहे थे उसको पीछे ले लो, दूसरा पैर आगे। हाथ कमर पर रख करके कमर को आगे की ओर पुश करो, नीचे की ओर। दोनों हाथों को ज्वाइन करो, नमस्कार मुद्रा में। आर्च बैक, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, ब्रीथ। Come back. Stand up without any jerky movement. आराम से धीरे से खड़े हो जाए। फॉरवर्ड बेंड के लिए तैयार होना है। पाद हस्तासना, पादांगुष्ठासना, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। स्ट्रेच, then hinge. Try to bring your palms by the side of your foot and stay there for a while. Stay there for a while. Stay there for a while. Breathe. Slowly come back. धीरे से वापस आइएगा। हाथ कमर पर रखेंगे, पैरों में हल्का सा अंतर रहेगा। बैकवर्ड बेंड, कमर को आगे पुश करते हुए धीरे 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 ले जाइए कमर को। Slowly come back, release and relax. Sit down please. बड़े आराम से हम सभी लोग अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन की स्थिति में आपका एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे रहता है। आंखें बंद रहेंगी, भ्रामरी करेंगे। आंखें बंद कीजिए, पीठ को सीधा रखें। We'll perform Bhramari 10 times before we end this session. To perform Bhramari, you will bring your fingers on your eyes. With the help of your thumb, you will close your earlids. Then you will take a deep breath in, and while exhalation, you will emit a sound of a humming bee. 10 times. If your hands are paining, you can release your hands, relax for a while. अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है, हाथों को रिलीज करने थोड़ा सा आराम दें शरीर को। आंखें बंद ही रखें, लेकिन पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद। We are about to close this session. Before we end this session, let's try to observe ourselves. Let's join our hands in Namaskar Mudra. Let's close this session with a small prayer, everyone.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms, give a gentle massage of your palms, rise and then open up your eyes. Thank you.